Assalamu alaikum everyone. I'm your science teacher and today we are learning chapter number 10, plants form and function. So turn to page number 89. So moving towards the chapter, we have to be very clear idea what is plant. Now we all know that plant is very important for our environment as well as for our ecosystem. Now we all have learned and we all have observed that plants in our surrounding having different sizes, different shapes and show different adaptations. Now why they show different adaptation? ताकि हम उन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें. Now in this chapter we are learning the parts of plants and what function they are basically performing. You can say that if root is a part of plant, then what is the function of root and how root is performing its particular function. This is the thing, this is the scenario we will actually learning in this chapter. So moving towards our chapter, classification of plants. There are several varieties of plants which are different heights, types of stems and branching patterns. Based on these, plants can be grouped into four categories, namely trees, shrubs, herbs and creepers. Now they are saying, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्लांट्स हमारे पास बहुत ही डिफरेंट साइजेस में होते हैं, शेप्स में होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम दे हैव डिफरेंट ब्रांचिंग पैटर्न्स. उनको किस तरह से ब्रांच किया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं और इसी की बेस पर उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रीज़ में, श्रब्स में, हर्ब्स में एंड क्रीपर्स में. Now what is trees? Plants that are tall and thick, hard brown stems are called trees. Their stems branches out and spread above the ground. For example, guava, neem and mango trees. Now बहुत ही कॉमन एक डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं ट्रीज़ के अंदर कि वो बहुत टॉल होते हैं, दे आर टॉल इन हाइट, बहुत ही थिक होते हैं, सख्त होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड के अबव होती हैं. ये एक बहुत ही मेन डिफरेंस है किसी भी ट्री में और किसी भी हर्ब में या क्रीपर में कि जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं वो अबव द ग्राउंड होती हैं. नाउ श्रब्स, plants with hard stem which branch near the surface of the soil are called shrubs. For example, lemon and roses. Herbs, plants with soft green stems are called herbs. They are generally short in height and have no branches. For example, basil and coriander. अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनकी जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं एंड दे आर शॉर्ट इन हाइट, सो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश कि ये हर्ब्स हैं. अब उन्होंने हर्ब्स में एग्जांपल दी बेसिल एंड कोरिएंडर की. तो बेसिल एंड कोरिएंडर बेसिकली हम खाते हैं. सो वी कैन से दैट वी आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल. जीने के लिए हम समहाउ प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. Now the last one is creepers. Plants with weak stem that cannot stand upright, अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर सकते, and spread on the grounds are called creeper. जाहिर है जब आप अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते, अपने आप को खुद से सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो जो ग्रो करेंगे वो ग्राउंड की सरफेस पर ग्रो करेंगे. तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स. While those that take support on neighboring structure and climb up are called climber. इसकी एग्जाम्पल हम मनी प्लांट से ले लेते हैं कि वो अपने आप को खुद से अपराइट खड़ा नहीं कर सकता. अगर हम उसको किसी वॉल के सहारे खड़ा कर दें या किसी वुडन स्टिक के सहारे अगर हम खड़ा कर दें तो वो अपने आप को उसी डायरेक्शन में ग्रो करवाता रहता है, सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर. तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स. Now, structure of plants. Plants can be divided into two distinctive parts or system called root system and shoot system. Now, plants जो हैं वो दो हिस्सों में divided हैं. कौन कौन से? एक तो है root system and the second one is shoot system.
Now moving towards the root system. The root is a part of plant which grows below the soil, यानी कि ज़मीन के soil के नीचे ग्रो करता है and hold the plant straight and upright. ज़मीन के अंदर वो अपने आप को ग्रो करवाता है और उसका काम क्या होता है कि वो प्लांट को सीधा खड़ा रखता है और सपोर्ट देता है, होल्ड करता है. ठीक है. The root grows away from the sunlight and towards the ground and is not green in color. रूट जो है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो नहीं करता. जैसे कि सनफ्लावर है या लीव्स हैं तो वो उस जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सनलाइट पड़ती है. रूट का क्या है, रूट उस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पर सनलाइट होती है, वो तो बेसिक चीज़ है, लेकिन रूट अपने आप को उस डायरेक्शन में ग्रो करवाता है जिस डायरेक्शन में सनलाइट नहीं होती, अवे फ्रॉम द सनलाइट होता है, यानी कि सॉइल के अंदर ग्रो करवाता है. The ground is and they are not green color. Why they are not green color? क्योंकि रूट हेल्प नहीं करता फोटोसिंथेसिस के लिए और उसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता. अगर तो क्लोरोफिल है और तो वो हेल्प करेगा किस में, फोटोसिंथेसिस में, और क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर आता है जो कि हम लीव्स में देखते हैं और हमें पता चलता है कि भाई ये लीव है, ये ग्रीन है, इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम के भी दो टाइप्स हैं. कौन कौन सी? एक तो हो गई टेप रूट्स एंड एक हो गई फाइब्रियोस रूट्स. नाउ व्हाट इज टेप रूट? बेसल हैज़ मेन रूट, यानी कि उसकी एक मेन रूट होती है, एक रूट जिसके साथ दूसरी रूट्स निकलती हैं. बेसल हैज़ मेन रूट विच ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द soil. This is the primary root. Primary root give out lateral roots called secondary roots. Such roots are called tape roots. Example में इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है? pea, gram, neem, mango trees. अब जैसे हमारे पास ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी, ये जो चीज़ है ये दिस इज़ द ग्रीन पार्ट, ये एक मेन रूट है, एक मेन रूट है बेसल की, और जो इसके बराबर से निकल रही हैं ये चीज़, ये हैं सेकेंडरी रूट्स. तो ऐसे रूट्स को उन्होंने बोला है टेप रूट्स. नाउ व्हाट इज़ फाइब्रियोस रूट्स? सम प्लांट्स लाइक ग्रास डू नॉट हैव मेन रूट्स. जैसे टेप रूट्स में बेसल की इन्होंने एग्जाम्पल दी कि उसके पास एक ही रूट होती है और एक ही रूट के साथ अंदर से दूसरी रूट्स निकल रही होती जिनको उन्होंने सेकेंडरी रूट्स बोला. तो फाइब्रियोस रूट्स में वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल दी ग्रास की, तो वहाँ पर एक मेन रूट नहीं होती. ठीक है. इंस्टेड अ बंच ऑफ रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट. एक रूट के बजाय वहाँ पे बहुत सारी रूट्स खुद ब खुद ग्रो करती हैं बेस के अंदर. These spread out into the soil and give supports to the plant. वही वाली बात, क्योंकि रूट का जो बेसिक फंक्शन है किसी भी प्लांट के लिए वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो उन्होंने भी यही बोला कि ये जो स्प्रेड आउट होती हैं रूट्स सॉइल के अंदर, उनका बेसिक काम यही होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को. Such roots are called fibrous or adventitious roots. Wheat grass, maize and millet plants have a similar kind of roots. उन्होंने एग्जाम्पल दी किस किस की? मेट ग्रास की, मेज की एंड माइलेट प्लांट्स की, कि उनके अंदर ये फाइब्रियोस रूट्स प्रेजेंट होते हैं. Now what is the function of roots? The root of the plant perform these functions. Number 1, they anchor and give supports to the plant. वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. किसी भी प्लांट के अंदर अगर रूट है तो ऑब्वियसली रूट का जो फंक्शन है वो ये है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है. क्यों? एज अ सोर्स ऑफ फूड. उनका जो सोर्स ऑफ फूड होता है वो ये होता है कि वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करे सॉइल से ताकि वो फूड प्रोवाइड कर सके प्लांट को. क्यों? ताकि वो अपने आप को ग्रो करवा सके.
रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड और वाटर। सॉइल इरोजन एक तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है, अपर लेयर को विंड जो है वो कह सकते हैं कि डिस्पर्स कर लेती है, उड़ा के ले जाती है, उस चीज़ को रोकता है रूट। इसके बाद some roots are modified to store food, for example radish, turnip, sweet potatoes and carrots. Some roots are modified to give additional support to the plant. These arise like ropes from the branches and trunk of the plant and grow towards the soil. अब वो ये बोल रहे हैं कि कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, क्यों? ताकि वो एडिशनल सपोर्ट दे सके किसी भी प्लांट को। एक तो वो सपोर्ट दे रहा है, जो रूट है वो तो अंदर अपनी ज़मीन में जड़ों में उसने पकड़ लिया है जो सॉइल से, ताकि वो किसी भी दरख्त को, किसी भी ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक और भी मॉडिफाइड अगर वो हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्लांट को। और वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, ट्रंक से, यानी कि जो उसका स्टेम होता है जो बहुत ही हार्ड होता है वहाँ से स्टार्ट होंगे। देन इट कोइल्स अराउंड दी ब्रांचेस ताकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और वो कहाँ ग्रो होंगे, टूवर्ड्स दी ग्राउंड, टूवर्ड्स दी सॉइल ग्रो होंगे। These are called prop roots seen in banana trees and sugarcane. यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये बेसिकली रूट है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। Some roots of leguminous plants like pea, beans have nodes or knob-like structure that harbor special bacteria that convert atmospheric nitrogen to nitrate in the soil. Some plants like orchids have aerial roots that links to the host plant, absorb minerals and absorb water from the atmosphere. कुछ प्लांट्स जैसे कि ऑर्चिड्स उनके अंदर एरियल रूट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, क्लिंग कर लेते हैं, अपने आप को जकड़ लेते हैं किसी भी होस्ट प्लांट को, और उससे क्या करते हैं, वो मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर ऑब्जर्व करते हैं। नाउ शूट सिस्टम, एक तो हमारे पास हो गया रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। नाउ रूट एंड शूट में हमारे पास डिफरेंस क्या है वो हम अभी देख लेते हैं। The part of the plant that grows above the ground is the shoot system. It consists of the main stem, its branches, leaves, flower and fruits. Now, root system में क्या था? The root is a part of the plant that grows below the soil, यानी कि ज़मीन के अंदर, and the part of a plant that grows above the ground is called shoot system, यानी कि ज़मीन के ऊपर। इन दोनों में डिफरेंस जो मेन है वो यही है कि रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड होता है एंड शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड होता है। रूट सिस्टम में सिर्फ रूट ही आता है एंड शूट सिस्टम में वो पार्ट्स आते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फॉर एग्जांपल लीव्स आ गए, फ्लावर्स आ गए एंड फ्रूट आ गया। Stem, the part of a plant which bears the flowers, leaves and fruit is known as stem. वो पार्ट जहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स हों, लीव्स हों, ब्रांचेस हों और अगर फ्रूट है तो फ्रूट हो, उस पार्ट को हम कहते हैं stem. It is the major link between root and the rest of the plant. अब वो ये क्यों बात बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मेजर रूट बिटवीन द स्टेम एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट, इसलिए बिकॉज रूट helps in absorbing water, minerals, why, as a source of food. अब उस सोर्स ऑफ फूड वो तो एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको लीव्स तक या फ्लावर्स तक या फ्रूट तक पहुंचाने का काम किसका है, स्टेम का। अब स्टेम एक पाथ प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है किसी भी फूड को, किसी भी सोर्स ऑफ फूड को, कि वो जाए लीव्स तक, लीव्स से जाए वो फ्लावर्स तक, फ्लावर से जाए वो फ्रूट तक, और बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट को। इसलिए उन्होंने बोला है कि स्टेम इज़ अ मेजर लिंक बिटवीन दी लिंक ऑफ द रूट एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम आर हार्ड एंड वुडी,
like in the trees, is called the trunk. It may be covered with dead layers of cell called the barks. Stems are also soft in grease and is as in herbs and weak as in climber. अब उन्होंने बोला है stems soft भी हो सकते हैं, green भी हो सकते हैं, herbs और climbers की तरह. Now moving towards the function of stem. What is the function of a stem? The stem bears the leaves, flowers and fruits of the plant and hold them upright. अब स्टेम का जो एक बेसिक फंक्शन है वो ये है कि वो किसी भी फ्लावर को, किसी भी लीफ को जो है वो सपोर्ट करता है, सहारा देता है ताकि वो अपनी जगह पर खड़े रह सकें. These stems helps to transport water, mineral from root to leaf and fruit and food from leaves to all part of the plant. As we discussed in a previous slide कि जो स्टेम का बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि वो पाथ प्रोवाइड करता है किसी भी सोर्स ऑफ फूड को कि वो लीफ, फ्लावर, फ्रूट या बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट तक जा सके. Some stems are modified to store food as in starch and are generally underground like in onion, ginger and potatoes. अब अनियन, जिंजर एंड पोटैटोज़ के जो स्टेम्स होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइड क्योंकि वो खाना स्टोर कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च और वो जनरली ग्राउंड के अंदर होते हैं यानी कि सॉइल के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं. स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर वीक and therefore their lateral branches modified to perform tendrils for support. अब कुछ stems जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं तो एडिशनल जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ग्रेप्स में और एडिशनल ब्रांचेस आके कॉइल हो जाती हैं. क्यों? ताकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि वो ख़राब ना हो क्योंकि वो वीक होती हैं. नाउ इन ज़ीरोफाइट्स लाइक कैक्टस स्टेम्स बिकम ग्रीन. जैसे कि अब ज़ीरोफाइट्स की अगर हम एग्जांपल लें उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल लिया कैक्टस की. स्टेम्स बिकम ग्रीन, स्टेम्स ग्रीन हो जाते हैं. एंड सक्यूलेंट, सक्यूलेंट का मतलब अगर हम कुछ स्टेम्स अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर से वाइट लिक्विडी निकलता है तो उसको हम कहते हैं सक्यूलेंट क्योंकि उनके अंदर रस भरा हुआ होता है. सक्यूलेंट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब ऑब्वियसली वो यहाँ पे ये बोल रहे कि स्टेम्स बिकम ग्रीन. अब वो ग्रीन बोल रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है. अब क्लोरोफिल है तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. I hope I make my points very clear. Now from leaf, we will continue our chapter in our next class. Thank you.